Today, we'll be starting with the design process of flange coupling, which is a rigid type of coupling out of the two types that are available which we'll be studying. So one is flange coupling, and the other design process we'll be studying will be the design of bush pin type of flexible coupling. All right. So with that, I'm sharing my screen with you now. All right. Someone please confirm if the PDF is visible. Please confirm if the PDF is visible to all. Yes, sir. Thank you. Thank you. So yes, this is the problem statement that we have in front of us today. Let me again repeat, this is the part of unit number 1 that we are starting from today. Under unit number 1, we will be studying a design of couplings. There will be 2 couplings that we will have to study the design process of. Then under unit number 1, we also have flywheel, but since we have covered it already in 6th semester, we will skip it for now. And we will do it once we are finished with the complete syllabus. Last, in unit number 1, we have design of bearings, under which we will have to design 2 bearings. One of them being a ball bearing or anti-friction bearing, as we call it. And the other one is a hydrodynamic journal bearing that we will have to design. So there are in all 5 design processes that we have to study under this unit number 1. These questions, let me tell you, will be asked for either 8, 7 or 12 marks. So to give you a range, these numericals are usually asked from 8 marks to up to 12 marks. These numericals are not asked for 20 marks. That means in unit number 1, you will have to attempt 2 design processes and not 1. Like you did in unit number 3 and unit number 4. Unit number 3, unit number 4 में आपको एक ही न्यूमेरिकल 20 मार्क का पूछा जाता है, आपको पता है 20 या फिर कम से कम 16 मार्क का तो पूछा ही जाता है. So there you have to attempt only 1 question. But in case of unit number 1 and unit number 2, in order to attempt total 20 marks, you will have to solve 2 numericals. All right. So, but yes, one thing that is on your side is these numericals are relatively shorter in length. All right, but yes, again we'll have to prepare properly in order to solve them without faltering at any stage. Okay, so with that, let us start with the problem statement. A flange coupling connects 2 equal diameter shafts. I'll repeat again. A flange coupling connects 2 equal diameter shafts in order to transmit 10 kilowatt at 500 RPM. Shafts are made of SAE 1030 steel, as also the bolts. The flanges are made of cast iron. Design the flange coupling for the same torque capacity as of the shaft. ठीक है? Now, आपको एक चीज तो समझ गई कि कपलिंग डिजाइन करना है, बट कौन सी कपलिंग? फ्लैंज कपलिंग. फ्लैंज कपलिंग कौन से टाइप की कपलिंग है? रिजिड टाइप की कपलिंग है. तो ये सारे सवालों के जवाब इमीडिएटली अपने बैक ऑफ द माइंड चलना चालू हो जाना चाहिए वंस यू स्टार्ट रीडिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो फ्लैंज कपलिंग, दैट मींस रिजिड कपलिंग अपने को डिजाइन करने का है. In order to transmit 10 kilowatt, that means we know this is the power that needs to be transmitted at 500 RPM. मतलब जो शाफ्ट घूम रहे हैं वो 500 RPM पे घूम रहे हैं. Shafts are made of SAE 1030 steel, as also the bolts. हमको पता है, हमने हमने कपलिंग का डायग्राम देखा हुआ है, उसमें बोल्ट्स होते हैं. तो यहाँ पे मटेरियल दिया हुआ है कि शाफ्ट्स और बोल्ट्स एक ही मटेरियल के बने हुए हैं और वो मटेरियल है SAE 1030. ठीक है, मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है. अगर मटेरियल नहीं दिया होता है तो yes, you are expected to select steel as material for shaft as well as for bolt on your own. The grade can be selected on your own, but yes, make sure that you select steel as material for shafts and the bolts.
इसमें कास्ट आयरन नहीं सिलेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। बोल्ट्स कैनॉट बी मेड ऑफ कास्ट आयरन और इवन शाफ्ट्स यू आर नॉट सपोज टू मैन्युफैक्चर देम आउट ऑफ कास्ट आयरन, दे हैव टू बी मेड आउट ऑफ स्टील, कीप दैट थिंग इन माइंड। द फ्लैंजेस आर मेड ऑफ कास्ट आयरन, जो फ्लैंज बने होते हैं वो जो फ्लैंज कपलिंग के जो फ्लैंजेस है वो कास्ट आयरन के बने हुए हैं। क्या करना है, डिजाइन द फ्लैंज कपलिंग फॉर द सेम टॉर्क कैपेसिटी एज दैट ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। नाउ लेट अस राइट द गिवन डेटा। वी हैव टू ट्रांसमिट पावर इक्वल टू 10 किलोवाट, तो हमने पावर लिख दिया, कितने आरपीएम पे भेजना है, तो 500 आरपीएम पे हमको पावर ट्रांसमिट करना है। मटेरियल फॉर शाफ्ट एंड बोल्ट इज SAE 1030, दिस इज द गिवन डेटा, एंड मटेरियल फॉर फ्लैंज इज कास्ट आयरन, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल करते चलेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते चलूंगा कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डिजाइन एंड चेक फॉर द डिजाइन। अभी यहाँ पे देखिए, आपका शाफ्ट का एक मटेरियल है, बोल्ट का एक मटेरियल है, फ्लैंज एक मटेरियल है। आपके डिजाइन में इतनी ही चीजें डिजाइन करनी है कि आपको नहीं, आपको हब भी डिजाइन करना है, आपको की भी डिजाइन करनी है, और इनके मटेरियल कौन से, तो ये हम जैसे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वैसे वैसे मैं इन चीजों का आपको आंसर दे दिया करूंगा, और जब ये न्यूमेरिकल हमारा खत्म हो जाएगा तब मैं ये चीज को आपको एक क्यूमुलेटिव तरीके से कंपाइल करके बता दूंगा, ठीक है। जो चीजें आपको याद रखनी है वो। फिलहाल लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो जनरली फ्लैंज कपलिंग, एटलीस्ट रिजिड फ्लैंज कपलिंग में हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द शाफ्ट डायमीटर, क्योंकि आप देखो न्यूमेरिकल में कहीं पे भी शाफ्ट डायमीटर कितना रखना है ये नहीं बताया गया है, आपको सिर्फ पावर दिया हुआ है और आरपीएम दिया हुआ है। थोड़ा ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, आपको न्यूमेरिकल में सिर्फ पावर दिया हुआ है और आरपीएम दिया हुआ है, या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि टॉर्क दिया रहेगा, ठीक है, और आरपीएम दिया रहेगा। नाउ पावर और आरपीएम को जोड़ने वाला फॉर्मूला, ध्यान से सुनना, पावर और आरपीएम को जोड़ने वाला फॉर्मूला हमारे पास है P is equal to 2 pi NT by 60. We have this formula which connects power with RPM and that is P is equal to 2 pi NT by 60. तो सिर्फ गिवन डेटा से मैं ये पता कर सकता हूं कि विद द हेल्प ऑफ पावर एंड आरपीएम I should be in a position to find out the value of torque. I should be in a position to find out the value of torque. All right, and from that value of torque हमको शाफ्ट डायमीटर निकालना है बाय अप्लाइंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। अब देखिए यहाँ पे ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का फॉर्मूला अपन ने यूज किया। सो वी नो फ्रॉम पावर एंड आरपीएम वी विल बी इन अ पोजीशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टॉर्क, एंड इफ आई नो द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस, if I know the value of maximum permissible shear stress, only one thing will be unknown and that is the diameter of the shaft. So here in the first stage you have to find out the diameter of the shaft and you have to do it by following ASME code. You have to do it by following ASME code. हमने डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स में ये शाफ्ट डिजाइन किया है, ASME कोड हमको पता होना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेड है। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपकी रिवीजन हो जाएगी। मेक श्योर यू व्हेन यू सेल्फ स्टडी, मेक श्योर यू रीड इट वंस अगेन। ऑलराइट, so design of shaft, for this we will be requiring table number 2-7 and table number 11-4. यहाँ पे 5 लिखा हुआ है बट 11-4 लगेगा, तो अपने को लगेगा 2-7 और 11-4, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ SAE 1030 स्टील निकालनी है। So let us open table number 2-7. Okay. So let us find out the material SAE 1030. Where is it? Yes, it is here. It is SAE 1030, and we know to design the shaft as per ASME code, we require the value of SUT and we require the value of SYT. तो SUT का वैल्यू SAE 1030 का 527 है और SYT का वैल्यू SAE 1030 का 296 है, ठीक है। तो यहाँ पे SUT हमने 527 लिख दिया मेगापास्कल और SYT लिख दिया 296 मेगापास्कल। These notations have their usual meaning. For example, SUT is ultimate tensile strength and SYT is yield tensile strength. So ultimate tensile strength for SAE 1030 steel as per table number 2-7 is 527 megapascal, whereas yield tensile strength for the material SAE 1030 steel
as per table number 2-7 is 296 megapascal. All right. Now we are following ASME code to design the shaft. So as per ASME code, allowable shear stress in shaft, that is tau max, as per ASME code, allowable shear stress in shaft tau max should be less than 0.18 times SUT or should be less than 0.3 times SYT. ये ASME कोड के हिसाब से ये डिजाइन पैरामीटर्स होते हैं कि टाउ मैक्स की वैल्यू 0.18 टाइम्स SUT से कम होनी चाहिए और 0.3 टाइम्स SYT से कम होना चाहिए. तो हम लोग क्या करते हैं, 0.18 टाइम्स SUT की वैल्यू निकालते हैं. SUT कितना है, 527. तो 0.18 टाइम्स SUT अपने को मिलेगा 94.86. ऑलराइट. वी ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 0.3 टाइम्स SYT. तो SYT है अपना 296. तो वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 0.3 टाइम्स SYT एंड दैट कम्स आउट टू बी 88.88. जो 0.18 टाइम्स SUT है वो आता है 94.86 और 0.3 टाइम्स SYT जो है वो आता है 88.88. इसके बाद हम ये करते हैं कि इन दोनों वैल्यूज में से नाउ अपने पास अलाउएबल शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स की दो वैल्यूज है, बराबर. टाउ मैक्स की वैल्यूज निकाले ना हमने. ये टाउ मैक्स की हमारे पास दो वैल्यूज है. हम दो वैल्यूज में से छोटी वैल्यू सिलेक्ट करते हैं. दैट मीन्स आउट ऑफ 94.86 मेगापास्कल and 88.88 megapascal, we will select the value of tau max as equal to 88.88. For now, we will select the value of tau max as 88.88 megapascal. ठीक है. तो यहां पे हुआ क्या है देखिए. Let me show you the photograph of the coupling. It is on the next page. Now, as you can see from the photograph, this photograph is also present in your data book. ये आपके डेटा बुक में भी है अवेलेबल. आप यहाँ पे देख सकते हो कि शाफ्ट में कीवे है. इस शाफ्ट में भी कीवे है और यहाँ पे भी आपको कीवे दिख रहा है. नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी इंट्रोड्यूस कीवे इन द शाफ्ट, the value of shear stress, maximum permissible shear stress goes down. Listen to me properly. Whenever we introduce keyways in shaft, तो उसका स्ट्रेंथ कम होता है. तो मैक्सिमम shear stress value that it can transmit has to be multiplied by 0.75 if there is a keyway. Now we know flange coupling में keyway तो है, क्योंकि शाफ्ट को हब के साथ जोड़ने के लिए हमको की देना जरूरी होता है. तो हम क्या करते हैं, ये वाली स्टेप में जो दो वैल्यूज मिली थी और इसमें से अपन ने जो छोटी वैल्यू सिलेक्ट की थी, वो छोटी वैल्यू को फिर से 0.75 से मल्टीप्लाई कर देते. तो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ टाउ मैक्स दैट यू गेट? इज 0.75 times the lower value out of these two values. So 0.75 multiplied by 88.88 and that gives us the value of tau max. As 66.66. तो अभी जैसे कि मैंने बताया था आपको कि पावर और आरपीएम की मदद से आप लोग टॉर्क निकाल सकते हो. ठीक है. उसके बाद में आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर्मूला यूज करना है. टॉर्क अवेलेबल है, टाउ मैक्स अवेलेबल है, तो आप डी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ हमारे पास टाउ मैक्स का वैल्यू आ गया. नाउ वी शुड बी इन अ पोजीशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टॉर्क. मैंने आपको इससे पहले बताया है कि जब भी ये पावर दिया होता है, ये रेटेड पावर होता है. ये पावर कौन सा होता है? रेटेड पावर. ये रेटेड, यहाँ पे पीआर लिखा नहीं है, बट इट शुड बी पीआर हियर. ऑलराइट. अपने को पता है कि इसको एक अपन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, सो एज टू कन्वर्ट दिस रेटेड पावर इनटू डिजाइन पावर. बराबर. तो हम क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हमको टॉर्क निकालना है. अपने पास पावर और आरपीएम अवेलेबल है. अपने को पता है P is equal to 2 pi nt by 60. तो टॉर्क इज इक्वल टू P अपॉन 2 pi n इंटू 60. और ये जो KL लिखा हुआ है, ये है लोड फैक्टर एंड दिस हैज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम टेबल नंबर 11-5. So let us move to table number 11.
7-5 और यहाँ पे देखो आपको लोड फैक्टर मिलेगा। और एक बार हम लोग न्यूमेरिकल स्टेटमेंट पढ़ते हैं जिससे अपने को पता चले कि कौन किसको चला रहा है। अ फ्लैंज कपलिंग कनेक्ट्स टू इक्वल diameter shaft in order to transmit 10 kilowatt at 500 rpm। दो शाफ्ट कनेक्ट हो रहे हैं, बस अपने को ड्राइविंग और ड्रिवन मेंबर कौन सा है ये नहीं पता चल रहा है प्रॉब्लम पढ़ के, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट अस से स्टीम टरबाइन इज ड्राइविंग अ लाइन शाफ्ट, लेट अस से स्टीम टरबाइन इज ड्राइविंग अ लाइन शाफ्ट। तो अपना फैक्टर देखो, शाफ्ट तो चल रहा है एंड में, तो अपना ड्रिवन मशीनरी में शाफ्ट आना चाहिए। ड्राइविंग मशीनरी अपने पास नहीं है, ड्रिवन मशीनरी में अपने पास शाफ्ट है। ड्राइविंग मशीनरी कौन सी है ये न्यूमेरिकल में मेंटेन नहीं है। अगर वहां पे बोला होता कि इलेक्ट्रिक मोटर से पावर ट्रांसमिट हो रहा है तो अपना हो गया रहता फैक्टर इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइविंग और ड्रिवन लाइन शाफ्ट, तो अपना फैक्टर बन गया रहता वहां पे 1.75। बट सिंस नथिंग इज मेंशन्ड, लेट अस अज्यूम एनीथिंग, यू कैन सिलेक्ट एनी वैल्यू आउट ऑफ दिस, ओनली थिंग इज ये लाइन शाफ्ट के सामने रहना चाहिए। तो लेट अस से ड्राइविंग मशीनरी इज स्टीम टरबाइन एंड विद द हेल्प ऑफ स्टीम टरबाइन वी आर रनिंग लाइन शाफ्ट। तो उसके हिसाब से अपना लोड फैक्टर जो है वो अपने को मिलता है 1.5, वो अपने को मिलता है 1.5। तो पावर को अपन ने लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, 2π×60 वाले फॉर्मूले में रखा और वहां से अपने को टॉर्क की वैल्यू मिली 286.47 न्यूटन मीटर। क्या वैल्यू मिली अपने को, 286.47 न्यूटन मीटर। ऑलराइट, अब यहां पे रखते वक्त नाउ वी नो दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से। दिस इज नथिंग बट टॉर्क इज इक्वल टू π/16 d³ into tau, where this tau is tau max, where this tau is tau max, and this torque is this calculated value. Now keep in mind tau max जो है, थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना है, tau max जो है वो मेगा पास्कल में है, tau max जो है वो मेगा पास्कल में है। दैट मीन्स इट इज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, whereas this torque is in terms of न्यूटन मीटर। कौन सा यूनिट है इसका, न्यूटन मीटर। अपने को डायमीटर चाहिए mm में, अपने को डायमीटर चाहिए mm में, दैट मीन्स टॉर्क भी अपने को mm में चाहिए और शियर स्ट्रेस भी अपने को mm में चाहिए। अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मेगापास्कल में निकाला हुआ है, दैट मीन्स ये जो टाउ की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 66.66 मेगापास्कल रखेंगे वो ऑलरेडी न्यूटन पर mm स्क्वायर के टर्म्स में अपन लिख रहे हैं। बट टॉर्क अगर हम डायरेक्ट 286.47 न्यूटन मीटर लिख देते हैं तो वो गलत रहेगा। तो वी विल हैव टू कन्वर्ट दिस टॉर्क वैल्यू इनटू mm वैल्यू, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे वैल्यू पुट अप करोगे तब थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखने का है, ठीक है। when you solve this torque is equal to π/16 d³ into maximum permissible shear stress value, you will get the value of diameter as 27.97 mm. You will get the value of diameter as 27.97 mm. Now हम लोगों ने शाफ्ट इसके पहले डिजाइन किया हुआ है, जब हमने गियर ब्लैंक डिजाइन कर रहे थे, स्पर गियर के लिए, हेलिकल गियर के लिए, बिवेल गियर के लिए, वर्म गियर के लिए, वो हर जगह हमने, आपको अगर याद होगा तो सबसे पहले पार्ट बी में हमने शाफ्ट डायमीटर उसका फाइंड आउट किया हुआ। हमको ये पता था कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी अप्लाई करने के बाद हम उसको 50% से बढ़ा देते हैं, 50% से बढ़ा देते हैं। ये जो डी की वैल्यू है उसको 50% से बढ़ा देते हैं। 50% से बढ़ा देते का मतलब वी मल्टीप्लाई दिस वैल्यू ऑफ 27.97, जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है उसको हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1.5 से। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सो एज टू अकाउंट फॉर बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द शाफ्ट वी इंक्रीज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ शाफ्ट डायमीटर बाय 50%। तो 27.97 को 50% से बढ़ाना मतलब 27.97 को अपन ने 1.5 से मल्टीप्लाई करना, और अल्टीमेटली अपने को शाफ्ट डायमीटर मिला 41.95। अपने को अल्टीमेटली शाफ्ट डायमीटर मिला 41.95। हमको ये भी पता है कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू अपने को मिलने के बाद वी ट्राई टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ शाफ्ट डायमीटर। नाउ कैलकुलेटेड वैल्यू दैट वी ऑब्जर्व्ड वाज 41.95 और स्टैंडर्ड डायमीटर अपने पास अवेलेबल है 45 mm का, ठीक है, 40 के बाद 45 mm का। तो हमने शाफ्ट डायमीटर फाइनल कर लिया 45 mm, शाफ्ट डायमीटर हमने फाइनल कर लिया 45 mm। ऑलराइट, ये अपन कर चुके हैं। इसके पहले थोड़ा सा हमने अलग तरीके से शाफ्ट डायमीटर फाइंड आउट किया हुआ था, जो मैंने आपको स्पर गियर में पढ़ाया हुआ था। वहां पे अपन ने ASME कोड फॉलो नहीं किया था। आप दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। वहां पे हमने ASME मेथड
एएसएमई कोड नहीं यूज किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एएसएमई कोड इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। ऑल राइट, लेट मी गेट सम फीडबैक फ्रॉम यू पीपल। अब तक जो हमने शाफ्ट डायमीटर का पढ़ाया उसमें कोई आपको तकलीफ? एवरीथिंग फाइन? Everything fine? See, it is not compulsory that every time Vilas Deshmukh replies to my question. If you are listening, should also respond to the questions which I ask. कोई बोलता ही नहीं है। I mean, मुझे ऐसा डाउट लगने लगता है कि आप लोग हो ऑनलाइन कि नहीं हो। शुभम, थैंक यू। ऑलराइट, so without wasting any more time, let us continue with the problem statement. Okay, so that completes our step number 1. That completes our step number 1, wherein we find out the value of shaft diameter. ठीक है। स्टेप 2 में आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन ऑफ फ्लैंज कपलिंग लिख लेते हो, और इसके लिए आप लोग टेबल रेफर करते हो, टेबल नंबर 12-1। लेट अस फाइंड आउट टेबल नंबर 12-1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शंस फॉर रिजिड फ्लैंज कपलिंग, और एक बार पढ़ता हूं, टेबल नंबर 12-1 इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन फॉर रिजिड फ्लैंज कपलिंग। और आप इसको अगर देखते हो तो ये जितने भी स्टैंडर्ड प्रोपोर्शंस है, जैसे हब डायमीटर DH, हब लेंथ LH, नंबर ऑफ बोल्ट्स N, बोल्ट डायमीटर DB, all these are dependent on the value of D. Can you see it? All these are dependent on the value of D, and this D is nothing but shaft diameter, and that is the reason we have to find out shaft diameter before finding standard proportions of rigid flange coupling. We have to find out shaft diameter before finding standard proportions of rigid flange coupling. तो स्टेप नंबर 2 में क्या किया हुआ है, यहां से फॉर्मूले उठाए हुए हैं और ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके रख दी है। हब डायमीटर DH इज 1.5 टाइम्स D प्लस 25, तो 92.5 mm आता है। हब लेंथ LH इज 1.25 टाइम्स डायमीटर प्लस 20, तो 76.25 mm मिलता है। नंबर ऑफ बोल्ट्स इज 0.02 टाइम्स डायमीटर प्लस 3, तो वो 3.9 आता है। नंबर ऑफ बोल्ट्स कैन नॉट बी a fraction, it has to be a round value, तो 3.9 को राउंड अप करके 4 कर दिया गया है। बोल्ट डायमीटर DB is 0.5 D upon under root of N, where N is number of bolts, तो उस हिसाब से अपने को बोल्ट डायमीटर 11.25 मिलता है। फ्लैंज थिकनेस जो है वो बोल्ट डायमीटर जितना ही देना है DB जितना, तो फ्लैंज थिकनेस अपने को 11.25 mm मिल गया। फ्लैंज प्रोटेक्टर विड्थ जो है B should be 2.5 टाइम्स DB, that is फ्लैंज थिकनेस, सॉरी बोल्ट डायमीटर 2.5 टाइम्स बोल्ट डायमीटर, तो अपने को मिला 28.125 mm। तो स्टेप नंबर 2 में हमने ये किए कि हम लोगों ने सारे के सारे जो प्रपोर्शंस है फ्लैंज कपलिंग के वो यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट कर लिए। नाउ आई वुड पुट दिस 2 PDF साइड बाय साइड एंड let us discuss what is what. तो आपके सामने 2 PDF। हब डायमीटर DH is the portion of the flange जो शाफ्ट को कवर करता है, और उसके डायमीटर को अपन ने हब डायमीटर बोला हुआ, ठीक है। नाउ वी नो देयर आर 2 हब्स, एक लेफ्ट साइड वाली फ्लैंज का, दूसरा राइट साइड वाली फ्लैंज का। एक हब कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड वाली फ्लैंज का, और दूसरा हब कौन सा है, राइट हैंड साइड वाली फ्लैंज का, ठीक है। सिमिलरली हब लेंथ इज द लेंथ ऑफ द हब। तो आप ये जो हैश पोर्शन देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में, उसका जो लेंथ है उसको बोला जाता है हब लेंथ, ठीक है। नंबर ऑफ बोल्ट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बोल्ट डायमीटर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फ्लैंज थिकनेस इज थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, और ये कहां पे गिना गया है, देखो ये TF जो है ना, लेट मी जूम इट आउट अ बिट, ये TF जो है वो फ्लैंज थिकनेस है, वो कहां पे गिना गया है। अगर आपको कुछ डायमेंशंस अगर निकालने हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि फ्लैंज थिकनेस कहां पे लिया गया है। फ्लैंज थिकनेस यहां पे गिना गया है, ठीक है। नाउ फ्लैंज प्रोटेक्टर विड्थ, ये जो सेंटर लाइन से लेफ्ट के एंड तक के फ्लैंज आया हुआ है उसको फ्लैंज प्रोटेक्टर बोला गया है, और उसका विड्थ B से डिनोट किया गया है। और आउटर डायमीटर मतलब पूरी की पूरी जितनी भी अपनी कपलिंग, उसका आउटर डायमीटर विच इज डिनोटेड बाय DO, ऑलराइट।
So with that, we finished our step number 2 also. In step number 1, we calculated shaft diameter. In step number 2, we found out standard proportions of flanged coupling. Okay. Let us move to next step. यहाँ पे पिच सर्कल डायमीटर भी है, आउटर डायमीटर भी है. हम बोलिए. हेलो. बोला हाँ सर. हाँ रहा था कि वो जो नंबर आप अपने सर जो बोल्ट लिए हैं तो वो ऑलवेज इवन में लेना है या ऑड में भी ले सकते हैं? आप हेलो. हाँ बोलिए बोलिए. ऐसा कुछ यहाँ पे आपको नहीं बोला गया है. हाँ मैं समझ गया आपका क्वेश्चन. नंबर ऑफ बोल्ट हमेशा ऑड या फिर इवन ही आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है. आपका जो भी वैल्यू आता है उसको राउंड अप करने के बाद, सपोज अभी अपना कैलकुलेटेड वैल्यू आया 3.9. सपोज अपना अभी जैसे कैलकुलेटेड वैल्यू अपना आया 3.9. कहा गया 3.9. तो ये 3.9 को राउंड अप करके अपने को 4 मिल रहा. ठीक है. इट इज एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी दैट ऑड आएगा कि इवन आएगा. जो भी आ रहा है उसको राउंड अप करके ऑड वैल्यू आए इवन वैल्यू आए, आपको जो वैल्यू आ रही है वो लेना है. ठीक है. तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हर बार इवन ही आएगा. ऑलराइट. डिड आई आंसर योर क्वेश्चन वैभव? ओके. लेट अस कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल. ना इसके बाद क्या करना पड़ता है, इसके बाद अपने को क्या करना पड़ता है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना. तो हमने फर्स्ट स्टेप में शाफ्ट डायमीटर निकाल लिया. सेकंड स्टेप में हमने सारे के सारे डायमेंशंस निकाल लिए. आपके पूरे कपलिंग के हमने सारे के सारे डायमेंशंस निकाल लिए सेकंड स्टेज में. अब बचा क्या है? आप बोलोगे कि अब तो डिजाइन हो गई. सेकंड स्टेप में टेबल नंबर 12-1 के हिसाब से हमने पूरी की पूरी कपलिंग डिजाइन तो कर ली है. तो अभी बचा क्या है करने को? तो अभी ये बचा है कि जो आपके डायमेंशंस मिले हैं आपको, जैसे हब लेंथ हो गई, हब डायमीटर हो गया, फ्लैंज थिकनेस हो गया, बोल्ट के नंबर हो गए, बोल्ट का डायमीटर हो गया, ये सारी चीजें आपकी डिजाइन सेटिस्फाई कर रही कि नहीं इसका चेक करना पड़ता है. तो इसके बाद स्टेप नंबर 2 के बाद जितनी भी स्टेप्स होती है अप टू स्टेप नंबर 5 अप टू स्टेप नंबर 6, तो 3, 4, 5, 6 ये 4 स्टेप में आपको डिजाइन चेक करना डिजाइन आवाज नहीं आपका. आवाज कट रही सर. है और आपको बोल्ट. इज एनीवन एल्स आल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम? यस सर. आपका आवाज ही नहीं आ रहा था सर. 2 मिनट से. अभी आ रहा है? हाँ सर अभी क्लियर है. ओके सर, योर वॉइस इज इंटरप्टिंग टू मच. ओके, आई थिंक सबको ये इश्यू आ रहा था. तो ओके, आई विल रिपीट वंस अगेन. नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई विल रिपीट. ठीक है. देखो 5 चीजों का ख्याल रखना है. पहला शाफ्ट, दूसरा हब, तीसरा की, चौथा फ्लैंज और पांचवा बोल्ट. ऐसे 5 चीजों का हमको ख्याल रखने का है. ठीक है. तो इसमें से ये 5 चीजों में से मटेरियल का हम लोग देख लेते पहले. ये 5 में से शाफ्ट, आपका बोल्ट और आपका की, और एक बार रिपीट कर रहा हूं, शाफ्ट, बोल्ट और की, ये 3 चीजों का मटेरियल कॉमन होता है. काय का? शाफ्ट का, बोल्ट का और की का. ये 3 का मटेरियल सेम होता है. और हब और फ्लैंज इनका मटेरियल सेम होता है. आई विल रिपीट वंस अगेन. 5 चीजों का ख्याल रखना है. शाफ्ट, हब, की, फ्लैंज और बोल्ट. शाफ्ट, हब, की, फ्लैंज और बोल्ट. इसमें से शाफ्ट, की और बोल्ट इनका मटेरियल स्टील होता है, वेराज हब और फ्लैंज इनका मटेरियल कास्ट आयरन होता है. ये चीज दिमाग में बैठा लो. ठीक है. तो आप बोलोगे कि फिर 4 ही चीजों को चेक क्यों करना है, शाफ्ट को चेक करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि शाफ्ट तो अपन ने सारी चीजें ध्यान रख के डिजाइन किया हुआ है ना. उसकी वैल्यू कोई फॉर्मूले नहीं
लिखी हमने उसको डिजाइन किया, फर्स्ट चला गया। तो बाकी की 4 चीजें अपने को चेक करनी, और वो 4 चीजें कौन सी है? वी हैव टू चेक फॉर डिजाइन ऑफ हब, वी हैव टू चेक फॉर डिजाइन ऑफ की, वी हैव टू चेक फॉर डिजाइन ऑफ फ्लैंज, वी हैव टू चेक फॉर बोल्ट और फ्लैंज। इनके जो डायमेंशन हमने स्टेप नंबर 2 में लिखे हैं, इनके जो डायमेंशन हमने स्टेप नंबर 2 में लिखे हैं, वो इन फॉर्मूले के हिसाब से लिखे हैं। हमने डिराइव या फिर डिजाइन किए क्या? नहीं, हमने डायरेक्ट इन फॉर्मूले के हिसाब से लिखे हैं। तो इन फॉर्मूले के हिसाब से जो वैल्यू आती है, वो वैल्यू सही आती है कि नहीं, ये चीज अपने को चेक करना जरूरी है। इसलिए स्टेप नंबर 2 में जब अपन ने सारे डायमेंशन फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद अपने को जो बचे हुए 4 पार्ट्स है, हब, की, बोल्ट और फ्लैंज, इनका डिजाइन चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी ये डिजाइन चेक वाला जो है, अपने पास अभी 5 मिनट बचे हैं, तो आई थिंक वी विल टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके सर। ठीक है, सो यस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। लेट अस मीट टुमारो।